गुड इवनिंग एवरीवन। हम कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाए जाएंगे। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ रखा है वो 1.5x या 2x में इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव the greatest impact on diversity? Option A, habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion, and coexistence. So, according to NCERT, habitat loss and fragmentation has the greatest impact on biodiversity is the correct answer. Question number 2, if we are to draw out relationship between area and species richness, then it will be straight line, rectangular hyperbola, sigmoid curve, or rectangular hyperbola on log scale. According to NCERT, it is given rectangular hyperbola is the correct answer. Question number 3, the criteria for recognizing a place as a biodiversity hotspot is: option A, low species richness and low endemism, high species richness and low endemism, high species richness and high endemism, low species richness and high threat of extinction. So high species richness होगा and high endemism होगा. So high species richness and low endemism, दोनों में low endemism है, so this will be incorrect, and high species richness and high endemism, option C will be our correct answer. Question number 4, species area relationship states that. क्या state करता है species area? Option A, species number will always keep on increasing with area, species number decreases with area, species richness increases with area but only up to a certain limit. This is the correct answer. Increase तो होगा but up to certain limit is the correct answer according to NCERT. Question number 5, in situ conservation include all of the following except in situ. यहाँ पर in situ कौन कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल पार्क्स, ये बोटानिकल गार्डन, दिस इज एन एक्स सिटू ना. बोटानिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, दिस आर एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट का बोला ना, तो सो बोटानिकल तो एक्स सिटू हो गया. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 6, world's land area occupied by India is how much, and the percentage share in global species is how much? So option में देखते हैं. इन इंडिया ना क्या कहा है? लैंड एरिया. सो लैंड एरिया 2.4 होता है एंड 8.1 ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर करता है. सो land area is 2.4 and species diversity will be 8.1. So option D will be the correct answer. Question number 7, usually species diversity dash S1 move from equator to poles. मतलब इक्वेटर से पोल तक अगर जाते समय डाइवर्सिटी बढ़ेगा या कमेगा. सो फॉर एग्जांपल ये वाला ग्लोब है और हमारा ये बीच का इक्वेटर है. सो स्पीसीज रिचनेस इस एरिया पे ज़्यादा होता है ना, और ऐसे ऊपर जाते जाते कम हो जाता है. इस एरिया पे बहुत डेंस स्पीसीज रिचनेस होगा, यहाँ पर बहुत कम होता है. सो इट विल डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर. ये वाला इक्वेटर है, सो यहाँ से पोल तक जाते जाते ये कम जाएगा. सो इट विल डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, 7A. So question number 8, correctly ongoing mass extinction of species is. ये कौन सा जनरेशन होगा, मतलब मास एक्सटिंक्शन. सो
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स। सो ये हमारा सिक्स्थ एक्सटेंशन, ऑनगोइंग एक्सटेंशन चल रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द NCERT। Question number 9. Community with more species have less variation in productivity. This was proposed by whom? ये किसने प्रपोज किया था? ये डायरेक्टली NCERT का आंसर है। इट इज प्रपोज बाय रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट मे ने प्रपोज किया था। क्या किया था? कम्युनिटी विथ मोर स्पीशीज हैव लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। रॉबर्ट मे ने इसको प्रपोज किया था। सो क्वेश्चन नंबर 9D answer। And question number 10. Keystone species are important for ecosystem and the loss can cause more damage compared to loss of other species। हाँ, क्योंकि जो कीस्टोन स्पीशीज है, जो मेन स्पीशीज है, डेफिनेटली वो ज़्यादा मेजर डैमेज करेगा ना, मोर डैमेज करेगा, ज़्यादा डैमेज करेगा। सो कैन सर्वाइव विथ हार्श कंडीशन, नो। Provide food to other species are on verge of extinction, ये भी कुछ हद तक सही है, बट ड्राइव मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम ना, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज है तो ये ड्राइव द मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम ही करेगा ना, जो मेन स्पीशीज है। मतलब तो मेन स्पीशीज तो मेजर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम को ही चलाएगा ना। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। More than 200 species of Kikile fish become extinct in the Lake Victoria। हाँ, ये लेक विक्टोरिया आते थे, किसको इंट्रोड्यूस करने पर ये 200 स्पीसीज ऑफ Kikile fishes become extinct, मतलब 200 मछली का स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुका था, किसके इंट्रोड्यूस करने के बाद? सो ये नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करने के बाद ये घटना हुआ था। Question number 12. Reason of conserving biodiversity are grouped under which of the following categories? Broadly utilitarian, narrowly utilitarian, and ethical. Yes, all of this सारा, all of this is the correct answer ना, क्योंकि ये सारा ही आता है। Question number 13. Biodiversity hotspots in India। वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मन रीजन भी है, हिमालयस भी है। सो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 14. ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट। हाँ, ये सही है, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। सो ए इज करेक्ट। एंड सीजनल वेरिएशन इज लेस एंड availability of solar energy is more in tropical region। हाँ, this is also correct and reason is also the correct explanation of other sense। so 14A is the correct answer। यहाँ पर क्या दिया है? मैच द कॉलम। खासी एंड जयंतियाले कहाँ पाया जाता है? मेघालय पे 1, तो 4 हो जाएगा। एंड अरावली हिल्स, ये तो राजस्थान में होता है, सो इट विल बी 1। चंदा एंड बस्तर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में होता है। एंड वेस्टर्न घाट इस द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, हम सब जानते हैं। सो A4B1 एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ में 16 मैच कॉलम 1 कॉलम 2, ये भी मैच द कॉलम है, ये भी मैच द कॉलम है। द अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? ये रियो डी जेनेरो पे हुआ था। सो रियो डी जॉनसनबर्ग नहीं, रियो डी जेनेरो यहाँ पर होगा। वर्ल्ड समिट कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड समिट जॉनसनबर्ग में होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, वर्ल्ड समिट जॉनसनबर्ग। एंड क्लेरियस गैरीपाइनस, ये एलियन स्पीशीज इन्वेशन का नाम है। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, सो कोएक्सटिंक्शंस, सॉरी इसको इधर आना था।
क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए 3 B2 C4, A3 B2 A3, हाँ इसमें भी एक ही ऑप्शन करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट है. सो 16 A option is correct. Question number 16 A option is correct. Question number 17 degree of diversity decreases from. डाइवर्सिटी कहाँ से कमता है? इक्वेटर से पोल तक जाने टाइम तक के टाइम कमता है ना. सो इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल इज द करेक्ट आंसर. ये मैंने समझा रखा है. Which one of the following does not come under evil कटाट ना? एलियन स्पीसीज इन्वेशन ये आता है. एलियन स्पीसीज इन्वेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, को एक्सिस्टेंस. मतलब हमारा 4 इविल कटाट होता है. एक एलियन स्पीसीज इन्वेशन, 2 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सी को एक्सटिंक्शन एंड डी ओवर एक्सप्लोटेशन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बट इसकी जगह डेजर्टिफिकेशन दिया है. सो ये तो नहीं होगा, गलत होगा. और डज नॉट कम अंडर ना. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये ऑड है. Gametes of threatened species can be preserved for long periods ना, for time. क्योंकि कैसे प्रिजर्व कर रखेगा उसे? क्रायो प्रिजर्वेशन ना, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रखेगा तब ये प्रिजर्व करना पॉसिबल है. सो क्रायो प्रिजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सितु कंजर्वेशन? एक्स सितु कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, हाँ ये एक्स सितु है. सीड बैंक भी एक्स सितु है बट बायोस्फीयर रिजर्व ये इन सितु है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज नॉट एक्स सितु पूछा गया है, नॉट एक्स सितु. सो बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सितु एंड बोटानिकल गार्डन इज ऑल्सो एक्स सितु. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? डेफिनेटली 3 है ना. ओके. According to the current records, most species richness taxonomic group among the vertebrates is. According to the current records, most species reach taxonomic. सबसे ज़्यादा species reach है fishes में ना. Fishes में सबसे ज़्यादा species richness होता है. So option A will be the correct answer. Okay. Question number 23 क्या कहा है? log s equal to log c plus z log a. Describe the equation. S क्या होता है? S क्या होता है ना? 23. Okay. S here S is the species richness and C is the y-intercept and A is the area and Z is the क्या? regression coefficient. So S species richness, slope of land, species richness, regression नहीं, ये होता सकता है A area, Z regression, X y intercept होगा, X intercept नहीं होगा. So हाँ, this is the correct answer. Question number 24 factor which is responsible for the extinction of passenger pigeon. ये डायरेक्ट आंसर है इसका ओवर एक्सप्लोइटेशन. हम इसे ओवर एक्सप्लोइटेशन करके इसे एक्सटिंक्ट कर चुके हैं. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस. हाँ यहाँ पर बहुत हाई लेवल का स्पीसीज रिचनेस होता है. हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रीजन ऑफ एसिलेटेड हैबिटेट लॉस, हाँ इसलिए हम उसे हॉटस्पॉट कहते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. सो थैंक यू सो मच. आज का हमारा इतना ही है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना और शेयर कर देना ना. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है और टेस्ट देने से पहले इसे एक बार देख लेना, उसके बाद टेस्ट देना है. सो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच.